Good morning, students. This is English at Ease channel, and today I am going to teach you lesson number 2 of English workbook of class 4 New Learning to Communicate of Oxford University Press. Students, after a long time, I am with you again and I welcome you, the students of class 4, and this is English workbook, the practice of English grammar. Okay, students, the first exercise you see that is the grammar in use. Simple past tense and past continuous tense. Students, you know that simple past tense and past continuous tense. Simple past tense means the second form of the verbs. As you know that, suppose that go, went, write, wrote, do, did. There are so many past forms like that, and you use in your everyday's life. Okay, suppose that yesterday I went to school. Okay, that is the simple past tense. And when we use past continuous, continuous means students ऐसा काम जो लगातार हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस दैट मीन्स जो काम पहले कुछ समय तक हो रहा था, ऐसा सेंस जहाँ होता है वहाँ पर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. इस चैप्टर में पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब दैट मीन्स V2 और पास्ट कॉन्टिन्यूस दैट मीन्स वाज वेयर के साथ V4 मतलब भार्ब के साथ ING फॉर्म का यूज़ सीखना है. Exercise 1, you just see that there are some sentences and you have to use them the correct form of the verbs that are given in the bracket. Okay, students, the book is very beautiful. That is the New Learning to Communicate of class 4 English workbook of Oxford University Press. You will get so many good exercises, useful exercises in this lesson. Now, exercise A, number 1, Bhim and his mother. Before that, just I am telling you that already in my channel you will get all the lessons of English course book. Okay, lesson 1 to 10 already I have uploaded with the explanation and answers. Okay, students, now first, where sitting. Students, देखो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और वेयर सिटिंग लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दैट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ हेयर, दैट विल बी हर्ड. इसमें दो सेंटेंसेस है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किए और सेकेंड पार्ट में हम लोग हर्ड दैट इज़ द पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ किए. सिमिलरली नाउ नंबर 2, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल पास्ट करेंगे, जस्ट उल्टा, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में किए थे. पास्ट कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्ट में, इसमें सेकेंड पार्ट में. देखो, व्हाइल द डेमन अटैक्ड, जब वो डेमन आया था ना माइटी भीम में, लेसन में पढ़ा होगा, तो उस डेमन ने आक्रमण किया जब भीम वाज सिटिंग कामली. ओके, भीम वाज सिटिंग कामली मतलब एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, वो खा रहे थे. नंबर 3, was having and second part came. 4, was raining and woke up means you know it very well, that is the past form of wake is woke. Now 5, that is the were walking, and the next part that will be saw. Okay, students, here the homophones has written, the student has written the homophone also, but you don't follow it, you will write only saw. ओके, सी का पास्ट टेंस सॉ होता है, ए से डब्ल्यू. ओके, और ये जो सी लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, ये होमोफोन्स के लिए प्रैक्टिस के लिए लिखा है, इसको आपको नहीं लिखा है. ठीक है. नंबर 6, यू सी दैट वाज लिसनिंग एंड सेकेंड पार्ट जम्प्ड. ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ जम्प इज जम्प्ड. ओके स्टूडेंट्स, यू विल गेट द आंसर्स इन द written form, printed form in the description box also. Okay, so that you can write them easily and that you will practice. Now students, that is the exercise B. आपको
क्वेश्चंस बनाना है जिसका शुरुआत में आपको व्हाट का यूज़ करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, लाइक दैट वे एक आंसर सुपर में दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन हमको फ्रेम करना है। जैसे कि नंबर 1, व्हाट वाज योर फादर डूइंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। ठीक है, और you will remember that the end of the sentence you will put the question mark। जबकि देखो मैंने इसको करेक्शन इसलिए नहीं किया ताकि आपको इस तरह का गलती आप करते हो, इस गलती को दिखाना ज़रूरी है। जब आपने लास्ट में इंटरोगेटिव जो मार्क है वो नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, जैसे कि देखो वेंट ऑफ में दिया हुआ था, एक क्वेश्चन मार्क आपको देना है। ये दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स जो मिसिंग है इसको आपको देना है, इसलिए मैं दिखाने के लिए इसमें अपने से मैंने पुट नहीं किया। ठीक है, ऐसा गलती हमेशा स्टूडेंट करते हैं। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस ये मतलब क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस है। ओके, नंबर 2, व्हाट वेर यू डूइंग व्हेन द रॉबरी हैपेंड। रॉबरी मीन्स डकैती, लूटमार, ऐसा। ओके, देन क्वेश्चन मार्क। What were you doing when I was sleeping? That is 3. Okay. After that, this is the fill in the blanks. There are again the some V2 forms, past tense forms of the words of the verbs. Like just I am telling you, number 1 went, and next part you will write bought. That is not bought. That is bought. Buy का past tense bought. BOUGHT. Similarly, caught, not caught. That is caught. Okay. बहुत स्टूडेंट्स कैच का फास्ट टेंस में कैच लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। कैच पकड़ना, इसको पास्ट टेंस में हम लोग कॉट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट दैट इज एस्केप्ड। ओके, भाग जाना, ऐसा। नंबर 3 दैट इज क्रॉस्ड, और 4 ट्रिप्ड। ट्रिप्ड, ट्रिप्ड मीन्स जब आपको चलते हुए कोई पत्थर से कोई जगह टकरा जाते हो, बाय चांस टकरा जाते हो, तो इस जगह में हम लोग ट्रिप्ड वर्ड को यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आई होप सो। नाउ द नेक्स्ट पेज यू सी दैट एक्सरसाइज बी, दैट मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रेजेस आर गिवन इन द लेफ्ट साइड। ये बुक मैंने पहले ही बताया था, ऑक्सफोर्ड का जो भी बुक्स है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारा ग्रामर का प्रैक्टिस आपको हर एक लेसन के बाद मिलेगा। देखो, इन ट्रेवल दैट इज़ फेस डिफ़िकल्टीज, जब हम विपत्ति में आते हैं, कोई सामना करते हैं, इसको इन ट्रेवल बोलते हैं। वॉयलेट तो आप जानते हो, अब बहुत सारा जगह में वॉयलेट आज यूज हो रहा है। वॉयलेट मीन्स पर्स। ओके, वेयर दैट इज़ पुट ऑन, पहनना। स्क्रीम, स्क्रीम माने जोर से चिल्लाना, चित्कार करना, डर से, कोई गुस्सा से, ऐसा। ड्रैग, खींचना, दैट इज़ पुल। Okay, now you have to use them in the blanks. Exercise C, first drag, खींचना। 2 wore, like that way, that is the past tense. Okay, wore means that is past tense. Okay, WORE. Next 3 that is wallet. Okay, नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें फिर से मिस्टेक है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 4 स्क्रीम्ड होगा, SCREAMED। ओके, क्योंकि देखो ये हमेशा मिस्टेक होता है, मैंने इसलिए मिस्टेक दिखा रहा हूँ ताकि आपको सीखना है। केवल मैं आपको आंसर देते जाऊँ तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मिस्टेक भी कभी कभी दिखाना ज़रूरी है, जब कहाँ गलती करते हो अक्सर। ओके, तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें स्क्रीम्ड होगा, तो इसमें जो वर्ड्स ऊपर में दिया हुआ है उसको डायरेक्ट नहीं लिख देना है, उसको पास्ट फॉर्म करके लिखना है। इज इट क्लियर? हर जगह में ऐसा नहीं है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में ड्रैग को ड्रैग ही लिखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। नंबर 4 में आपको स्क्रीम्ड लिखना है, मतलब पास्ट फॉर्म में लिखना है। एक गलत है, स्क्रीम गलत है, इसमें ED लगाना है। इज इट क्लियर? आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Now 5 you see that will be interval. Okay, interval. Is it clear? Now the next page. Next page you see that is exercise E, that the fill in the blanks. Okay, there are some words and already we have studied such and such words. Okay,
Suppose that number one, that is the bear. Bear, I can't bear. Bear means tolerate करना, बर्दाश्त करना. ओके, BEAR. ये भालू नहीं है. इस जगह में बेयर का मीनिंग है आपको बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना. नंबर टू, दैट इज हेयर, खरगोश आप जानते हो. नेक्स्ट थ्री, दैट इज डियर, DEER. डियर मीन्स हिरन, आप जानते हो. ओके. नंबर फोर, there will be that is the mail. Mail is very important word, MAIL. And mail, nowadays we send through our mobile, through our laptop, that is email. लेकिन एक ज़माना था जब डाकिया होते थे, पोस्टमैन होते हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन उतना उनका यूज़ अब नहीं रहा है जो हम लोग को पोस्ट कार्ड व एनवलप वो लेके आते होंगे. कुछ ऑफिशियल काज में ही पोस्टमैन अब का यूज़ होता है. लेकिन अक्सर पहले जो है, अब आप पेरेंट्स से पूछोगे तो ज़रूर बताएंगे, पोस्टमैन का एक अलग इम्पोर्टेंस होता था सोसाइटी में. वो आते थे और चिट्ठी लेके आते थे. ओके, तो ये सब को भी हम लोग मेल बोलते हैं. ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, पाया जाता है, ये सभी को हम लोग मेल बोलते हैं. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ जी, देयर आर द ब्लैंक्स, अगेन द ब्लैंक्स, and the words are given in F exercise box, that and the meaning of the words are different. देखो ये जो आउट आउट करके जितने वर्ड्स है सबका मीनिंग अलग है. मैं एक एक करके बता रहा हूँ. नंबर वन, दैट विल बी आउटवर्ड. आउटवर्ड बाहरी. ओके, आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहरी लुकआउट तो आप सबका देखते हो, लेकिन माइंड कुछ अलग होता है, चेहरा कुछ अलग होता है. ओके. नंबर टू, दैट इज आउटकम. आउटकम मीन्स रिजल्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, देखो, दैट इज आउटडू. ये नया वर्ड है आपके लिए, ये एक न्यू वर्ड है और आपको सीखना है इसका मीनिंग क्या है. आउटडू मीन्स एक दूसरे को आगे बढ़ाना. जैसे हम लोग खेल में करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं. एक टीम में जब हम लोग टीम वर्क करते हैं तब एक दूसरे को टांग नहीं खींचते हैं, बल्कि आगे बढ़ाते हैं. दैट इज आउटडू. ओके. नंबर फोर, आउटडोर गेम. ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप जानते हो इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम के बारे में. चेस आउटडोर गेम नहीं है. चेस इज नॉट एन आउटडोर गेम. ओके. नंबर फाइव, दैट इज आउटगोइंग. ये न्यू वर्ड है आपके लिए. हिज ब्रदर जैक इज आउटगोइंग. आउटगोइंग मीन्स मिलते जुलते रहना, बाहरी वातावरण में जो बहुत अच्छा घुल मिल जाते हैं, बाहर में जाना पसंद करते हैं. ऐसे बहुत लोगों को आप देखोगे, स्टूडेंट्स को भी देखोगे. जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में ही रहते हैं हमेशा, कभी कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आस पड़ोस के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते हैं. तो आउटगोइंग मीन्स इसका जस्ट उल्टा है, जो बाहरी दुनिया में जाना ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा लोग से मिलना जुलना चाहते हैं, घूमते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, बहुत इजीली किसी के साथ फ्रेंडशिप बना लेते हैं, ऐसे को हम लोग आउटगोइंग कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़